اور اب خبروں کی تفصیل۔ شہریت ترمیمی قانون پر ناراضگی اور دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ پر پولیس کی زیادتی کے خلاف مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلبہ کا احتجاج آج تیسرے روز بھی جاری رہا۔ اس احتجاج میں بڑے پیمانے پر طلبہ نے حصہ لیتے ہوئے اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کی زیادتی کی شدید مذمت کی ہے۔ طلبہ نے حکومت کے خلاف بھی نعرے بازی کی اور اس قانون کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ طلبہ نے NRC کی بھی مخالفت کی۔ حکومت سے پولیس ظلم بند کرنے اور سماج کے مذہب کے نام پر تقسیم کرنے والے قانون کو واپس لینے کی مانگ کی گئی۔ طلبہ کی تائید میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف بھی حمایت کر رہا ہے۔ یونیورسٹی کے اندر کر رہے ہیں اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ NRC اور CAA بل کو واپس لیا جائے اور اس کے علاوہ یہ چونکہ یہ غلط ہے اور اس غلط کے علاوہ اگر اسٹوڈنٹ کہیں بھی ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں اسٹوڈنٹ اگر اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے تو اس میں حملہ نہیں کیا جائے، بلکہ سرکار یہ سمجھے کہ ہندوستان میں اگر یہ چیز کسی کو بھی ایکسپٹ ہوتا تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ روڈ پہ نہیں آتے، اس کو واپس مودی سرکار واپس نہیں لیتے ہیں جب تک ہمارا پروٹیسٹ جاری رہے گا اور ہم یہ وائلنس نان وائلنس طریقے سے آندولن کرتے رہیں گے، ڈیموکریٹک وے میں کریں گے اور کوئی بھی ہم رولز کا وائلیشن نہیں کریں گے، ہم کے پیسفل طریقے سے وائلیشن کرتے رہیں گے کو واپس لینا جامعہ کے اسٹوڈنٹس پہ جو ٹالرنس ہو رہا ہے، بہت سارے ان کو مارا گیا ہے، بس یہ بل واپس لے لیں۔ NRC ختم نہیں ہوتی، CAA ختم نہیں ہوتی اور ہمیں جو جامعہ ملیہ کے ساتھ ہوا اور MU کے ساتھ ہوا ان کو انصاف نہیں ملتا، جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے اور جب تک یہ ہمیں انصاف نہیں دیتے ہم تب تک کرتے رہیں گے۔ آزادی کے نعرے لگانا ہے، کس چیز سے آزادی چاہیے؟ ہمیں ایجوکیشن کی آزادی چاہیے، ہمیں پڑھنے کی آزادی چاہیے، ہمیں NRC سے آزادی چاہیے، ہمیں CAB سے آزادی چاہیے، ہمیں اپنے حق کی آزادی چاہیے، جس کے لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے یہ کے خلاف ہے، ہم بھی جو ہے اس کو کنڈم کرنا چاہ رہے ہیں، NRC کے خلاف ہے، ہم بھی اس کا جو ہے پوری طریقے سے ویروध کرتے ہیں۔ آپ ٹیچنگ اسٹاف سے ہیں؟ ہم ٹیچرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ہم CAA جو ایکسکلوژنری ہے، اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہے، اس کو لاگو کرنا کوئی ضرورت نہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ یہاں کے CM صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں پر جو پیسفلی اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنی پولیس کو کہیں کہ وہ میڈیا کو ایلو کرے یہاں پر کوریج کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے پولیس اور شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج جاری ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ یونیورسٹی میں طلبہ نے احتجاجی ریلی نکالی۔ اس احتجاج میں طلبہ تنظیموں کے نمائندوں کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ احتجاج کے دوران دہلی پولیس اور مرکزی حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی گئی۔ اس قانون کو واپس لینے کا مرکز سے مطالبہ کیا گیا۔ احتجاجی طلبہ تنظیم کے ذمہ داروں نے جامعہ کے طلبہ پر حملہ کرنے والے پولیس عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کی بھی مانگ۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف حیدرآباد میں مختلف مقامات پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے دارالشفا میدان پر احتجاج کیا گیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ AMU طلبہ پر پولیس کارروائی کی یہاں سخت مذمت کی گئی۔ احتجاجیوں نے CAA اور NRC کو واپس لینے کی مرکزی حکومت سے مانگ کی۔ ملک بھر میں CAA کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ نظام آباد میں بھی مختلف طلبہ تنظیموں نے احتجاج کیا اور مرکزی حکومت سے شہریت قانون کو واپس لینے کی مانگ کی۔ احتجاجیوں نے NRC کی بھی مخالفت کی۔ نظام آباد کے دھرنا چوک پر طلبہ تنظیم PDSU SFI SIO NNUI کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ مرکزی حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ CAA اور NRC کی مخالفت کی گئی اور اس کو منسوخ کرنے کی بھی یہاں مانگ کی گئی۔ کچھ اور اہم خبریں بھی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR نے آج بھنگیر یاددری کا دورہ کیا۔ انہوں نے یاددری مندر کا دورہ کیا اور مندر میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ساتھ ہی عہدیداروں سے مختلف مسائل پر غور و خوض کیا گیا۔ KCR نے یہاں مندر میں درشن بھی کیے۔ انتظامی کمیٹی کے وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا گیا۔ واضح رہے کہ تلنگانہ حکومت یاددری مندر کو تروپتی مندر کی طرز پر ترقی دینے کا کام کر رہی ہے۔
हैदराबाद की तारीखी कुल हिंद तारीखी सनती नुमाइश का 1 जनवरी से आगाज होने वाला है। इसकी बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। गुज़िश्ता साल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में कई स्टॉल जलकर खाकस्तर हो गए थे। हाईकोर्ट ने नुमाइश सोसाइटी से साफ तौर पर कहा है कि तमाम महकमों से NOC हासिल करने के बाद ही नुमाइश का एहतमाम किया जाए। खास रिपोर्ट। हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में हर साल पूरे मुल्क के सनतकार और ताजिर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। शहर के नामपल्ली इलाके में वाक़े नुमाइश मैदान में 80 सालों से इस नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। नुमाइश मैदान में 2500 स्टॉल्स लगाने की गुंजाइश है। गुज़िश्ता साल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में तकरीबन 200 स्टॉल्स जल गए थे। कारोबारियों का 40 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ था। इस हादसे के बाद मुख्तलिफ गोशों से नुमाइश सोसाइटी पर सवालात उठ रहे हैं। गुज़िश्ता साल हैदराबाद की तारीखी नुमाइश यानी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में ठीक इसी जगह 200 से ज़ायद स्टॉल्स जलकर खाकस्तर हो गए थे। हाई कोर्ट ने एग्जीबिशन सोसाइटी को साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जब तक तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं किए जाते नुमाइश मुनाकिद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर साल 1 जनवरी से शुरू होने वाली 45 रोज़ा सनती नुमाइश में रोजाना हजारों अफराद आते हैं। हाई कोर्ट में दायर करदा मुफाद आमा की दरख्वास्त पर अदालत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि जब तक तमाम महकमों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल नहीं की जाती तब तक नुमाइश के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लास्ट ईयर जो नुमाइश में हुआ इंसिडेंट, अभी हम लोग 80th नुमाइश करने वाले हैं अभी 2020 का। ऐसा इंसिडेंट हमारे एक्सपीरियंस में कभी हुआ नहीं। वो बहुत अनफॉर्चुनेट था वो इंसिडेंट हुआ और उसके वजह से हम लोग बहुत अलर्ट हो गए हैं और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज ने हम लोगों को एक रिकमेंडेशन किया है, सजेशंस किया है और उसके हिसाब से हम लोग पूरे फायर सेफ्टी के लिए पूरा इंतजाम कर रहे हैं। एग्जीबिशन सोसाइटी हर साल की तरह इस साल भी शेड्यूल के मुताबिक 1 जनवरी से नुमाइश के आगाज की तैयारी में लगी हुई है। नागहानी सूरत हाल में आग बुझाने के लिए पूरे नुमाइश मैदान में 2 किलोमीटर तवील पाइपलाइन नस्ब की जा रही है। इसके अलावा बिजली के वायर्स को ज़ेरे ज़मीन किया जा रहा है। मेरी दुकान से चुप थोड़ी ही आगे जब ब्लास्ट हुआ था तो पूरे लोग भाग रहे थे, बहुत परेशान थे, समझिए बहुत परेशान थे लोग। बहुत जनों का बहुत नुकसान हुआ था। अब इस साल तो बहुत अच्छे इंतजाम चल रहे हैं। लाइट के वास्ते वो MCV वगैरह लगा दिए है और कुछ पब्लिक के वास्ते कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। पानी वगैरह आपको सहूलत हो गई एग्जीबिशन में और आप लोग बेझिझक आ सकते हैं, कोई डर वर की बात नहीं है जी, और डर वर की बात नहीं है, बेझिझक आ सकते हैं आप लोग और कुछ टेंशन की बात भी नहीं है। यहाँ पर इंतजाम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद की सनती नुमाइश को इस साल तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ मुनक्किद करने की कोशिश की जा रही है, जिसका तवील अरसे से मुतालिबा था। नुमाइश सोसाइटी अंदरून 1 हफ्ते तमाम कामों को मुकम्मल करने पर गौर कर रही है। ये वही वाटर टैंकर है जहाँ पर बहुत बड़ी मकदार में पानी जमा किया जाएगा। नुमाइश सोसाइटी को उम्मीद है कि नुमाइश के आगाज़ से पहले ही वो तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लेंगे। कैमरामैन नवीन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 26 साला वेटरनरी डॉक्टर की इज्तिमाई इसमतदरी के बाद उसके कत्ल और लाश को जला देने की वारदात के सिलसिले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी जारी है। साइबराबाद पुलिस की जानिब से दिसंबर के आखिर में चार्जशीट दाखिल करने का इम्कान है। दिशा मामले में 30 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए हैं। DNA रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस के पास है। इसमतदरी कत्ल वारदात के करीब के CCTV फुटेज को अहम शवाहिद माना जा रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट और कौमी इंसानी हकूक कमीशन की हिदायत पर दिशा मुलजिमीन की लाशों को गांधी अस्पताल के मुर्दा खाने में महफूज कर दिया गया। ताहम ये लाशें अब आहिस्ता आहिस्ता मस्क होने लगी हैं, जिस पर गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपनी बेपनाह तशवीश का इजहार किया और इस सिलसिले में महकमा सेहत को इत्तला दी है। लाशों को मजीद 2 हफ्तों तक महफूज रखा जा सकता है। लाशों को दिल्ली के असरी मुर्दा खाने मुंतकिल करने का भी पुलिस का मंसूबा है।
वाज़ेह है कि 27 नवंबर को वेटरनरी डॉक्टर की इज्तिमाई इसमत दरी कत्ल और लाश को जलाने का 4 अफराद पर इल्ज़ाम है। 6 दिसंबर को पुलिस ने चारों मुलज़मीन को मुबैना एनकाउंटर में हलाक कर दिया। दिशा मामले और हरमकुंडा इसमत दरी मामले के मुतासरीन का नाम, उनके रिश्तेदारों की शिनाख्त मीडिया में जारी करने पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने मीडिया इदारों को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, 6 अखबारात और 2 टीवी चैनल्स के साथ साथ मरकजी और रियासती हुकूमत, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट काउंसिल और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया है। हैदराबाद के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करने वालों पर कार्रवाई करने की हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसी पर अदालत ने मीडिया हाउसेस को 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया। हैदराबाद में ज़हनी तौर पर मुतासरा लड़की की गैंगरेप के वाक़े में मुलविस 3 मुलज़मीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुलसुमपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला एक लड़की, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, 26 नवंबर को घर से बाहर गई। लड़की को बहला फुसलाकर एक ऑटो ड्राइवर कलीम और अजीज़ ने मूसा नदी के पास ले जाकर उसकी इस्मत रेज़ी की। बाद-ए-अज़ा मुलज़मीन ने लड़की को जुमेरात बाज़ार के पास नज़ीर नामी एक दोस्त के हवाले किया। लड़की को घर छोड़ने को कहा। नज़ीर ने भी लड़की के साथ शर्मनाक हरकत की। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियाँ। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज, स्याह पट्टियां बांध कर निकाली गई रैली, कलेक्ट्रेट में दिया गया धरना। आंध्र प्रदेश हुकूमत का तारीख साज कारनामा, आरटीसी को हुकूमत में जम करने का बिल असेंबली में मंजूर, मुलाजमीन में जश्न का माहौल, वज़ीर आला से किया इजहार तशक्कुर। जिला कर्नूल में तेलुगुदेशम लीडर का बेदर्दी से दिन दहाड़े किया गया कत्ल, सियासी हरीफों पर हमले का है इल्जाम, तेलुगुदेशम ने किए कत्ल की मज़म्मत। और एपी हुकूमत पर तेलुगुदेशम लीडरों के खिलाफ इंतकामी हमला करने का नायडू ने लगाया इल्जाम, टीडीपी, एमएलएस और एमएलसी के साथ चंद्रबाबू नायडू का एहतजाज। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। विजयवाड़ा के मछलीपट्टनम में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान मुसलमानों ने स्याह पट्टियां बांधकर शहर में रैली निकाली। रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। ये रैली शहर के मुख्तलिफ मकामात से होते हुए कलेक्ट्रेट धरना चौक पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गई। इस दौरान साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बिल मुसलमानों के खिलाफ है, जिसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने CAA कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। जिला कृष्णा में मुसलमानों ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत पर मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही हुकूमत से मुतनाज़ कानून को वापस लेने की मांग की गई और NRC की भी यहाँ मुखालिफत की गई। आंध्र प्रदेश के शहर कड़पा में मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से शहरी तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ ज़बरदस्त रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने मुतनाज़ कानून को मनसूख करने की मरकज़ी हुकूमत से मांग की। रैली में बच्चे, नौजवान और बुजुर्गों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, अपना एहतजाज दर्ज करवाया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर तुलसी रेड्डी ने बिल को आइन के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत का कानून आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के खिलाफ है। उन्होंने हुकूमत से इस बिल को फौरी वापस लेने की मांग की।
कर्नूल में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। AISF PDSU की ज़ेर क़यादत ये एहतजाज किया गया। कर्नूल कलेक्ट्रेट पर एहतजाज करते हुए CAA की मुखालफत की गई। NRC को नाफिज न करने की यहाँ मांग की गई। साथ ही मरकज़ी हुकूमत पर अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक करने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। CAA और NRC को मनसूख करने तक एहतजाज को जारी रखने का भी यहाँ ऐलान किया गया। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के रियासती सदर मौलाना अकबर बादशाह ने शहरी कानून के मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी, कानून की मुखालिफत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। साथ ही हुकूमत से इस कानून को फौरी वापस लेने का भी मुतालबा किया। हिंदुस्तान का जो खूबसूरत दस्तूर है, हमारा जो कानून बना हुआ है, और यहाँ का दस्तूर के जो हुकूक दिए गए हैं माइनॉरिटीज को, अक़लियत को, वो हुकूक पामाल किए जा रहे हैं और हुक्मरान बैठकर उन हुकूक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग अंदाज से नफरतें फैला रहे हैं। ये हम लोग बहुत ही बुरी बात आज के दिन समझते हैं कि ऐसे काम नहीं होना चाहिए, और उन लोगों के हक में हम ये कहना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत है, इसको ऐसा ही रहने दिया जाए। आप तरक्की ना करें तो ना करें, लेकिन इसको नीचे की तरफ ले जाना और तनज़्ज़ुल की तरफ ले जाना हरगिज ना करें। और खुसूसन जो माइनॉरिटीज में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, मदारिस हैं, मस्जिदें हैं, उलमा हैं, उन पर निशाना बनाना और औरतों पर हाथ उठाना, लड़कियों पर हाथ उठाना, लड़कों को घरों से निकाल कर मारना, पीटना, ये कहाँ की इंसानियत है? उन लोगों को पहले इंसानियत सीखना चाहिए और ऐसी बुरी हरकतों से बचना चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा पर दिल्ली पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल करने की सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया ने सख्त मजम्मत की है। SDPI आंध्र प्रदेश के सदर अब्दुल वारिस ने इस मौके पर कहा कि पुलिस की कार्रवाई गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में अमन व अमान की सूरत हाल को काफी नुकसान पहुंचा है। मुल्क के हालात हमारे सामने हैं, जिस तरह से बहरान पे बहरान लाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जामिया मिलिया का जो मामला, पुलिस का जो तशद्दुद है, ये कौम को समझने की जरूरत है। ये लोग तशद्दुद के जरिए अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक CAA को वापस नहीं लिया जाता, ये मोमेंट चलता रहेगा। SDPI भी इसके लिए मैदान में उतर रही है और मुल्क गिर एहतजाज हम करने वाले हैं। अमित शाह जी, मोदी, आपको तारीख से सबक सीखना चाहिए। जो नजरिया आप हिंदुस्तान में थोपने जा रहे हैं, चाहे वो हिटलर का हो, चाहे वो मुसलिनी का हो, उनका नतीजा आपके सामने है। लेकिन हिटलर वहां पर मर चुका है, लेकिन उसका नजरिया आप हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अमन पसंद शहरी ज्यादा है, यहां पर सेकुलर जमातों की बहुतात है। इनकी कमजोरी क्या है, ये एक नहीं हो रहे। और जब जिस दिन ये एक होंगे, अवाम की ताकत का अंदाजा होगा और आपको छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, वो दिन भी आपके लिए आएगा। बहुत कमी है, GDP गिर रहा है, बहरान देश में चल रहा है, चाहे माशी तौर पर हो, चाहे वो सनतकारी के रूप में हो, चाहे जो भी हो, माश गिर रहा है। लेकिन आप बहरान को ऊपर कर रहे हैं। बहरान के जरिए माशी को हालत को छुपाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो गिरती हुई साख को, ये नहीं होगा। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। RTC को हुकूमत में जम करने का बिल असेंबली में पास हो गया। 1 जनवरी से RTC के 52,000 मुलाजमीन अब सरकारी मुलाजमीन हो जाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जगनमोहन रेड्डी हुकूमत ने मुल्क में एक नई तारीख रकम की है। मुल्क की तमाम रियासतों में RTC को कारपोरेशन के तहत चलाया जाता है। आंध्र प्रदेश के RTC मुलाजमीन अब कारपोरेशन के नहीं बल्कि सरकारी मुलाजमीन हो गए हैं। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट ने असेंबली में बिल पेश की। तवील मुबाहिसे के बाद इस बिल को मंजूर कर लिया गया। स्पीकर असेंबली ने बिल की मंजूरी का ऐलान किया। वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि 1 जनवरी से दीगर महकमों के मुलाजमीन की तरह RTC मुलाजमीन भी महकमे ट्रांसपोर्ट के तहत सरकारी मुलाजमीन हो जाएंगे। जनवरी 1వ తారీఖు నుంచి వీళ్ళంతా కూడా ప్రభుత్వ ఎంప్లాయీస్ గా చలామణి అవుతారు అధ్యక్ష అని చెప్పి నేను ఇదే వేదిక దీనివల్ల
దాదాపుగా 3,600 కోట్ల రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ తరఫున గవర్నమెంట్ శాలరీస్ రూపకంలో బర్డెన్ తీసుకునే కార్యక్రమం గవర్నమెంట్ తీసుకుంటా ఉంది అధ్యక్ష. 58 సంవత్సరాల వయసు ఇంతకుముందు ఈ కార్పొరేషన్లో రిటైర్మెంట్ వయసు ఉంటే మిగిలిన ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ప్రభుత్వంలో ఉండారో 60 సంవత్సరాలు ఉంటే వీళ్ళకు కూడా 60 సంవత్సరాలు వర్తింపజేసేట్టుగా కూడా ముందుగానే ఆదేశాలు జారీ చేసి విలీన ప్రక్రియకు తర్వాత మొదలు పెట్టాం అధ్యక్ష. असेंबली में अपने खिताब के दौरान वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पिछले 5 सालों के दौरान आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि साल 1997 में जिस वक्त चंद्रबाबू नायडू मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वजीर आला थे, उस वक्त खानगी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन को हुकूमत में जम करने से रोकने के लिए एक कानून भी मुतारुफ किया था। वजीर आला ने कहा कि आरटीसी के 52,000 मुलाजमीन को हुकूमत में जम करने से सरकारी खजाने पर सालाना 3,600 करोड़ का इजाफी बोझ आयद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और आंध्र प्रदेश असेंबली में आरटीसी को सरकारी इदारे में जम करने वाला बिल मंजूर किए जाने पर मुलाजमीन ने खूब जश्न मनाया और वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। मुलाजमीन ने वज़ीर आला की तस्वीर को बाकायदा दूध से नहलाया और कहा कि वज़ीर आला ने अपने इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन में जम कर दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूल अब इंग्लिश मीडियम में तब्दील होने वाले हैं। आइंदा तालीमी साल से इस पर अमल आवरी शुरू हो जाएगी। तमाम सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में तब्दील करने से मुतालिक पेश करदा बिल को मंजूरी मिल गई है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रोजगार के लिए अंग्रेजी तालीम बेहद जरूरी है। साहब, राइट टू एजुकेशन अब राइट टू इंग्लिश एजुकेशन में तब्दील हो रहा है। ये एक तारीखी बिल है। इसके बाद अब रियासत के तमाम सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम में तब्दील होंगे। हमारी रियासत में जुमला 45,000 सरकारी स्कूल्स हैं। ये तमाम 45,000 स्कूल आइंदा तालीमी साल से इंग्लिश मीडियम में तब्दील हो जाएंगे। इन 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद हमारे बच्चे इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम लिखने के काबिल बन जाएंगे। ये एक तारीखी फैसला है। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में तेलुगु देशम के लीडर के कत्ल की वारदात पेश आई। जानकारी के मुताबिक जिला कर्नूल के कोल्लेम गंडुला मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले सुब्बाराव का कत्ल उनके सियासी हरीफों ने किया। हमलावर 2 कारों में पहुंचे थे, उन पर चाकू से हमला किया गया। इसके नतीजे में वो हलाक हो गए। सुब्बाराव को उनके हरीफों ने तेज हथियार से वार करते हुए हलाक किया। नीचे गिरने पर उनके सिर पर बड़े बड़े कई वजनी पत्थर डाल दिए गए। सुब्बाराव की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तेलुगु देशम ने इसकी सख्त मजम्मत की है। मौजूदा वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी सरकारी कामकाज से ज्यादा इंतकामी सियासत में अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं और ये कहना है एन चंद्रबाबू नायडू का। उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट के अलावा रेत की किल्लत, रियासत में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, तेलुगु देशम कारकुनों पर हमला इसकी ताज़ा मिसाल है। चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में तेलुगु देशम MLAs ने असेंबली के अहाते में एहतजाज किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि असेंबली में हमारी आज़ादी को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो जमहूरियत के लिए कतई ठीक नहीं। कर्नूल के ऑल इंडिया मिली काउंसिल दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तंजीम के सदर मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने कहा कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से 18 दिसंबर को यौम अक़लियती हुकूक़ मनाया जाएगा और इस प्रोग्राम में तमाम मिली, समाजी और दीगर अक़लियती नुमाइंदे शिरकत करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।